students, and a warm welcome to Supergrads. And today we shall be talking about yet another important topic, that is, what could be the expected score versus percentile for CAT 2024. I know इस चीज के इस एरिया के अराउंड आप काफी ज्यादा डिस्कशन करते होगे, इधर उधर से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलता होगा कि नहीं इतना स्कोर होना चाहिए तो यू वुड गेट दिस 99 percentile. But you need to understand previous trends also, you need to compare the previous data also, and then maybe you can analyze and then maybe you can assess कि CAT 2024 का मेरा targeted percentile क्या होना चाहिए. Now if you're targeting suppose 99 percentile, so हर एक section में भी आपको कितना score करना है to get a 99 percentile. So we would be talking about all that data. So I would be comparing 3 साल का डेटा over here, that is CAT 2021, CAT 2022 and CAT 2023, that is last year only. And then I would be telling you कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर सेक्शन में आपके क्या एक्सपेक्टेड स्कोर्स होने चाहिए और ओवरऑल आपका कितना एक्सपेक्टेड परसेंटाइल या ओवरऑल कितना एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर डेटा. नाउ अनदर कंफ्यूजन that students have is कि यार ये percentile आखिर होता क्या है. A lot of you might have heard of percentage, but percentile के बारे में ज्यादा knowledge नहीं होता है. So percentile here simply refers to a rank of the candidate. तो suppose 10 बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं and you are at the 4th position over there. जब रिजल्ट वगैरह आ गए, so you're at the 4th position. So that simply means there are 3 candidates ahead of you. So first, second, third, there are 3 candidates ahead of you, and suppose 4th position पे आपका 95 percentile बन रहा है. So that simply means कि उन 3 candidates का percentile आपसे better है. That is why they are at a superior rank than you. Simply the data also here also, जब हमें पता चलेगा कि कैट के कितने registrations हुए हैं इस बार, जैसे last year it was 3.5 lakh students के around, 3.5 lakh students had written the exam. So the number might increase this year. So दो चीजों पे आपका जो परसेंटाइल है बहुत हेविली डिपेंडेंट होता है. एक तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are writing the exam because you're competing with the number over here. Second is the difficulty level of the exam. तो अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगा, as in it is overall difficulty level among the 3 slots is considered to be difficult, that means कि कम स्कोर पे भी आपका एक अच्छा परसेंटाइल बन सकता है. सो दैट डिफिकल्टी लेवल से हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि अरे यार एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया. इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ सर्टेन नंबर, अटेम्प्ट्स आपके अगर ठीक हैं विद द राइट एक्यूरेसी, तो कम अटेम्प्ट्स में भी यू कैन गेट अ बेटर स्कोर एंड अ बेटर परसेंटाइल. So that is what it simply means. So I think I've shared enough information. So I hope now you're clear about what percentile means. And now let us begin with the very first section, that is the VARC section. तो सबसे पहले VARC का हम score versus percentile compare कर लेते हैं. So this is the data of the previous years that I have in front of you. So अगर हम 100 percentile जो सबसे टॉप है इसकी बात करें, so अगर आप 21 की बात करोगे, although I'm not sure of these two numbers over here, but this is as per my prediction. And suppose 100 percentile पे 65 से 70 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है इन VARC. 2022 में अगेन ये 63 हो गया. रीजन बीइंग ये जो एग्जाम है 2021 वाला VARC जो सेक्शन रहा होगा माइट बी वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे 63 बन रहा है 22 में. फिर हम 23 पे अगर आते हैं, सो देन अगेन the difficulty level might have increased again. तभी यहाँ पे 61.66 हम expect कर रहे हैं as the score on the 100 percentile. Similarly, अगर हम अब 24 के expected score की बात करें, so you can say कि अगर आप 42 से 44 के बीच में रफली अगर आप स्कोर कर लेते हो VARC सेक्शन में, so you can expect a 100 percentile over here. So this is the data for the 100 percentile. अब आ जाते हैं 99 प्लस अगर आपका आता है, फॉर एग्जाम्पल 99.5 आता है या 99.36 आता है अगर आपका परसेंटाइल, जो भी नंबर है अगर वो 99 से ऊपर है, सो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड डेटा है कि 45 से 56 के बीच में जिनका स्कोर रहा था, those people got a 99 plus percentile.
सिमिलरली 40 से 52 कैट 2022 के डेटा में 40 से 52 के बीच में अगर आपका स्कोर है इन VARC, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ 99 प्लस परसेंटाइल. सिमिलरली 39 से 57, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अगेन दिस इज गोइंग डाउन. व्हाई इज इट गोइंग डाउन? बिकॉज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. और इस साल भी हम वही प्रिडिक्शन लेके चलते हैं कि इस साल भी इंक्रीज हो सकता है डिफिकल्टी लेवल, सिंस आई एम कैलकाटा इज सेटिंग द पेपर. सो 39 से 57 के बीच में 23 में अगर आपका ये स्कोर रहा तो 99 प्लस परसेंटाइल वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स. एंड नाउ 24 के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 38 से 40 के बीच में अगर आपका VARC स्कोर है तो आप 99 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कैट 2024. So this is the data. I've kept all the major figures of percentile over here. जैसे 98 परसेंटाइल का मैंने रखा है, तो 98 प्लस पे अगर आप देखोगे तो आपको 33 से 37 का स्कोर लाना है टू गेट अ 98 प्लस परसेंटाइल. सेम 95 में या 95 प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो 29 से 31 आपका स्कोर होना चाहिए इन VARC सेक्शन. सिमिलरली 90 प्लस के लिए आपका स्कोर होना चाहिए 23 से 26. एंड देन आई हैव रिटन फॉर 85 प्लस के लिए भी मैंने लिखा हुआ है 20 से 22 के बीच में हो सकता है आपका स्कोर. एंड देन 80 प्लस से भी अगर ऊपर आप जाते हो तो 18 to 20 आपका स्कोर होना चाहिए. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप कुछ कॉलेजेस होते हैं सर्टेन परसेंटाइल के बीच में जो आप टारगेट कर सकते हो. सपोज 95 प्लस वाले भी कॉलेजेस हैं, देन यू हैव 90 से 95 के रेंज में भी कॉलेजेस, यू हैव कॉलेजेस इन 85 to 90 रेंज ऑल्सो. सो राहुल सर इज ऑलरेडी टेकिंग द वीडियोज ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज कि कौन से कॉलेजेस आप किस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे टारगेट कर सकते हो. सो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, इट इज अगेन वेरी क्रूशियल, यू कैन चेक दैट आउट ऑन आवर चैनल. मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं DILR पे. अगेन DILR बीइंग द डिफिकल्ट सेक्शन अगेन, तो यहाँ पे अगर हम 100 परसेंटाइल की बात करें, अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दीज टू फिगर्स बट दिस इज अगेन एज पर माई प्रिडिक्शन. तो 100 परसेंटाइल के लिए 65 से 70 का अगर स्कोर रहा 21 में तो आप 100 परसेंटाइल उन बच्चों का बना. जिन बच्चों का 50 से 60 के बीच में स्कोर रहा उनका कैट 2022 में 100 परसेंटाइल बना. अब 23 के लिए 50 मार्क्स, अगर आप 50 मार्क्स ओवरऑल आते हैं आपके DILR सेक्शन में तो आपका 100 परसेंटाइल बनता है यहाँ पे. अब आ जाते हैं 24 में क्या एक्सपेक्टेड है. तो अगर 26 से 30 के बीच में आपका स्कोर है इन द DILR सेक्शन, दैट मीन्स अगेन अगर आप दो सेट्स DILR में एकदम करेक्ट सॉल्व करके आते हो, सो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट दीज मार्क्स ओवर देयर, तो आपका 100 परसेंटाइल यहाँ पे पक्का है. नेक्स्ट 99 प्लस के रेंज में अगर आप देखोगे तो अगेन 23 के डेटा के अकॉर्डिंग 27 से अगर 43 के बीच में जिनके भी मार्क्स रहे, दो स्टूडेंट्स गॉट अ 99 प्लस परसेंटाइल. एंड हियर नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड 99 प्लस परसेंटाइल फॉर कैट 2024, तो 23 से अगर 26 के बीच में आपका स्कोर है तो you can expect a 99 plus percentile. So this is the data over here. Similarly 98 plus के लिए आपका expected score 21 से 22 के बीच में होना चाहिए in DILR. 95 के plus के लिए आपका score 18 से 20 के बीच में हो सकता है. 90 plus percentile के लिए 14 से 17 के बीच में आपके मार्क्स हो सकते हैं. नेक्स्ट 85 प्लस के लिए 13 टू 14 के बीच में आपका स्कोर रह सकता है. 80 प्लस अगर परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो तो योर स्कोर शुड बी अराउंड 10 to 12 मार्क्स. नेक्स्ट द लास्ट सेक्शन दैट वी हैव इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांट की भी बात कर लेते हैं हम. अगेन 100 परसेंटाइल पे आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दीज टू डेटा, बट 100 परसेंटाइल पे 60 to 70 मार्क्स जिन स्टूडेंट के रहे इन 2021 इन QA, दो स्टूडेंट्स गॉट अ 100 परसेंटाइल. एंड 22 में 50 to 60 के रेंज में जिनके स्कोर्स रहे, दो स्टूडेंट्स गॉट अ 100 परसेंटाइल. नेक्स्ट 23 की बात करें तो 49.46, अगेन 50 के अराउंड जिन स्टूडेंट्स का स्कोर गया इन 2023,
those students got a 100 percentile. एंड अगर अब हम 24 के एक्सपेक्टेड स्कोर्स की बात करें तो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग द डिफिकल्टी लेवल अगेन टू बी हाई ओवर हियर. सो आप 29 से अगर 33 के बीच में अपना टारगेट रखते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ 100 परसेंटाइल. अब आ जाते हैं 99 प्लस पे. 99 प्लस पे अगेन 35 से 49 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया इन 21 उनका 99 प्लस बना. 33 से 47 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया इन 22 उनका 99 प्लस बना. अब 23 में अगेन दिस नंबर हैज डिक्रीज. 28 से 42 हो गया रेंज. तो 28 से 42 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया दो स्टूडेंट गॉट अ 99 प्लस. अगेन डिफिकल्टी लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा हो सकता है. तो 25 से 28 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है क्यूए में तो आप 99 प्लस शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट 98 प्लस की अगर मैं बात करूं तो योर एक्सपेक्टेड स्कोर शुड बी बिटवीन 19 टू 22 मार्क्स. 95 प्लस की बात करूं तो 18 होना चाहिए. 90 प्लस अगर हम देखें तो स्कोर हो सकता है 15 टू 17 के बीच. अगर 85 प्लस की बात करें तो 12 टू 14 के अराउंड आपके मार्क्स हो सकते हैं. 80 प्लस की बात करें तो यहाँ पे अगेन 10 टू 12 आपके मार्क्स होने चाहिए. सो यू कैन एक्सपेक्ट 80 प्लस परसेंटाइल इन क्वांट. Now the very important figure is the overall percentile जिसके बेसिस पे आप अपना टारगेट सेट करोगे. अब आपको बाकी सेक्शंस के परसेंटाइल और स्कोर्स कंपेयर करके इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर मॉक्स में जहां भी कुछ कमी है हाउ कैन आई इम्प्रूव दैट और कितना परसेंटाइल कितने क्वेश्चंस मुझे अभी सही सॉल्व करने हैं टू गेट दैट पर्टिकुलर स्कोर. सो आई होप कि वो सेक्शंस वाला डेटा क्लियर होगा. आप एक बार पीछे जाके वीडियो को बैक फॉरवर्ड बैक करके आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्क्रीन का एंड यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन कीप दैट विथ यू सेव्ड विथ यू. नेक्स्ट अगर आप बात करें स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओवरऑल की अगर हम बात करें सो 100 परसेंटाइल पे 2021 में टोटल 150 अगर किसी का स्कोर रहा तो 100 परसेंटाइल उस स्टूडेंट को मिला. नेक्स्ट 136 जिसका रहा इन 2022 दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट गॉट अ 100 परसेंटाइल. सिमिलरली 23 में 142 जिसका रहा उस स्टूडेंट को मिले 100 परसेंटाइल अगेन ओवर हियर. और यहाँ पे अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 98 से अगर 102 के बीच में आपका स्कोर आता है इन कैट 2024 ओवरऑल तो आप 100 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो. सिमिलरली 99 प्लस पे आ जाते हैं. 99 प्लस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर 98 से 110 के बीच में जिसका स्कोर रहा दैट पर्सन गॉट अ 99 प्लस परसेंटाइल. 84.33 से लेके 114 के बीच में जिसका स्कोर रहा इन 22 दैट पर्सन गॉट अ 99 प्लस परसेंटाइल. 76 से 118 के बीच में जिसका स्कोर रहा that student got 99 plus percentile in CAT 23. और अब आ जाते हैं 24 वाले डेटा पे. तो अगर 80 से 83 के बीच में आपका स्कोर है इन CAT 2024 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 99 प्लस परसेंटाइल. नेक्स्ट 98 की अगर मैं बात करूं 98 प्लस सो 75 से 78 के बीच में हो सकता है आपका ओवरऑल जो स्कोर है. 95 प्लस की बात करूं तो आपका ओवरऑल स्कोर 55 से 58 के बीच में हो सकता है. 90 प्लस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्कोर यू कैन से 45 से 48 के बीच में हो सकता है. 85 प्लस की अगर हम बात करें तो 39 से 43 के बीच में हो सकता है ओवरऑल स्कोर. अगर 80 प्लस की बात करें सो अगेन 35 से 39 के बीच में हो सकता है योर ओवरऑल स्कोर. सो दिस इज द ओवरऑल डेटा that we have. If you want this particular PDF for your reference so that you can refer to it again and again, I'll make sure I pin it in the first comment ताकि आप एक बार इसको देखो पूरा रिव्यू कर सको. You will be able to understand the predictions that are being made और previous year का क्या डेटा है. उसके अलावा this was it from my side. And if you want your preparation to go on in full swing, अगर पुराने questions practice करने हैं and if you want to stay connected with us with the updates and everything, don't forget to join our Telegram channel.
The QR is given over here, and the link is also given in the description for the Telegram channel, so you can join it from there. Also, Instagram page, we are coming up with a lot of B school updates and regular updates with regards to exams and different colleges. So make sure you join our Instagram channel as well. So the link for the same is given in the description box. And till then, stay tuned to Supergrads.